विजिबिलिटी क्लियर है, वॉइस क्लियर है सभी को, ठीक है। एंड नाउ लास्ट क्लास में, ठीक है, ट्रांसपिरेशन स्टडी किया था, रिगार्डिंग स्टोमेटा हम लोगों ने स्टडी किया था। एंड टुडे वी फर्स्ट डिस्कस अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द ट्रांसपिरेशन, वॉइस एंड वीडियो तो क्लियर है, वॉइस क्लियर हो गया, आई होप, ठीक है। सो इन लास्ट क्लास वी स्टडी अबाउट कंप्लीट जो किया था हम लोगों ने, ट्रांसपिरेशन, असेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसपिरेशन, टू फिनोमिना वी कंप्लीटेड। ट्रांसपिरेशन क्लियर है सभी को, वाटर लॉसेस टेक प्लेस इन टर्म्स ऑफ वाटर vapors we generally say. And after that, when we come towards the process of transpiration, so one of the important view or theory you studied, that is called as बेसिकली उस थ्योरी को आपने पढ़ा था, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी और पोटेशियम मैलेट आयन थ्योरी आप कहते हैं, ठीक है। अब जो हम स्टडी करेंगे आज, वन अनदर फिनोमिना विच इज रिलेटेड विद द लॉस ऑफ वाटर, बट इन दैट फिनोमिना प्योर वाटर के साथ साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड इज ऑल्सो लॉस्ट और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लॉस्ट होते हैं, सो दैट वी स्टडी। तो यहाँ पे हम गट्टेशन को स्टडी करेंगे। 1 मिनट, क्वेश्चन, I am not audible. Wait. Rest of another students. Audible हूँ. मान्या, check your network. Okay. अनुश्री को भी है. Anyone else to whom I audible है? Okay. ठीक है. अभी क्लियर है मान्या? ठीक. अदिति, अभी तो खैर मैं कुछ ओके, ऑडिबल है ना, क्लियरली ऑडिबल? ओके बेटा, मान्य वन टाइम चेक करेंगे बेटा, ठीक है। मे बी ड्यू टू नेटवर्क इशू, सम टाइम इट मे बी हैपेन। सो ट्रांसपिरेशन हम लोगों ने कंप्लीटली स्टडी किया था। इन ट्रांसपिरेशन वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, टाइप ऑफ स्टोमेटा, specifically remember the arrangement of cellulose fiber on the wall of guard cell, and then after हमने स्टडी किया था प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी और पोटेशियम मैलेट आयन थ्योरी, ठीक है। वन टॉपिक इज रिमेनिंग, दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, एंड सेकेंड ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड फिनोमिना गट्टेशन वी स्टडी। सो द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गट्टेशन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं factors affecting the rate of transpiration. So next heading, write down factors affecting rate of transpiration, ठीक है। जब आप फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं कि हाउ द फैक्टर्स और व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, सो बेसिकली फर्स्ट वी स्टडी climatic factor, and in climatic factor post temperature, direct relationship, so it directly affect the rate of transpiration. Secondly, 25 to 35 degrees Celsius temperature is
used to open stomata if we under experimental condition. So under experimental condition, generally 25 to 35 degrees Celsius temperature is used. Experimental condition. ठीक है. Second major effect of light frequency. ठीक है. Quality of light affect the rate of photosynthesis. Blur हो गया है बोर्ड. ठीक है. लाइट फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट आप फैक्टर स्टडी करते हैं. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यू रिमेंबर. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अगेन डायरेक्टली अफेक्ट, and for that we set the apparatus at 3 different times: morning, in afternoon, and at evening. When you compare the rate of transpiration, so rate is very low in morning and evening, but maximum rate, because during afternoon time the frequency of sunlight is maximum, and because of that आप study करते हैं कि rate of photosynthesis is maximum. So rate you remember, rate is maximum in afternoon. ठीक है. Second and third, this is somewhat differ. इससे related question आता है कि if the set apparatus is placed under the fan, then what is the effect on the rate of photosynthesis? So wind velocity also increases the rate of transpiration. आप याद रखेंगे. and apparatus को आपने set किया है transpiration के लिए, and you kept that apparatus in laboratory just below the fan, then the rate of transpiration is increases. तो यहाँ पे third environmental factor or climatic factor is wind velocity. So third, wind velocity also you remember. High wind increases rate of transpiration. ठीक है. And fourth factor is humidity. Atmosphere में if the atmosphere is humid, then the rate of transpiration is decreases. So greater the humidity, meaning clear है सभी को humidity का, lower the rate of transpiration. So this part you remember. ठीक है कि rate of transpiration हमेशा कैसे होगा? लो. ओनली क्या चेंज होगा? ह्यूमिडिटी के लिए है. अदरवाइज आप स्टडी कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर डायरेक्टली एसोसिएट विद द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. इंटरनल फैक्टर, द अनदर फैक्टर्स which we study, that is the internal factor, and internal factor means the factor which associate with the structure of the leaf. And in internal factor, first factor is frequency of stomata, that how many number of stomata are located on epidermis. So frequency of stomata we study, and in frequency of stomata more number of stomata increases, दिख रहा है, increases the rate of transpiration. Okay, so rate of transpiration you remember,
किसके थ्रू अफेक्ट होगा? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ स्टोमेटा, दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टोमेटा आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस। तो फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर हम फाइंड आउट करते हैं। सेकेंडली स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, second is structure of internal factor. Second internal factor is structure of stomata. Whatever stomata you study in last classes, that is a structure of normal stomata. Whenever we use the term normal stomata, that means the structure that we studied already. So normal, if the stomata कैसे हैं आपके? Normal stomata and stomata located on surface of leaf or epidermis of leaf, रेट मैक्सिमम आपको मिलेगा। सो मैक्सिमम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज अवेलेबल। बट कलर्ड पेन से नोट करेंगे, इन केस ऑफ जीरोफिटिक प्लांट हम स्टडी करते हैं कि स्टोमेटा कैसे होते हैं। स्टोमेटा आर embedded in stomatal chamber or that kind of stomata are called as sunken stomata। देखिए sunken stomata का मीनिंग होता है कि stomata is embedded or stomata is present inside a stomatal chamber or stomatal cavity। Sunken stomata, firstly you remember match the column type of question. Sunken stomata always correct match is xerophyte because sunken stomata are the property of xerophyte। Xerophytic plants में stomata are never located on the surface of the epidermis। xerophyte में क्या होगा? देखिए normal leaf, नॉर्मल लीफ में आप अपेयर करते हैं। इफ डाइकोट लीफ इज दिस, सो स्टोमेटा आपके कहाँ पे लोकेटेड है? स्टोमेटा लोकेटेड ऑन द डायरेक्टली ऑन द लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये सरफेस स्टोमेटा होते हैं आपके। बट व्हेन यू कम टू द जीरोफिटिक प्लांट्स एंड यू स्टडी अबाउट द संकन स्टोमेटा, सो इन जीरोफाइट व्हाट इज हैपनिंग, लीफ का सरफेस एरिया भी एक्चुअली रिड्यूस्ड हो जाता है। लीफ बिकम अ निडल लाइक जनरली। एंड स्टोमेटा एपिडर्मिस से यहाँ पे आपके अपर्चर्स अवेलेबल होंगे, बट दीज अपर्चर्स आर कंटिन्यू विथ small cavities। These cavities are called as stomatal cavity, and then the stomata are located to hidden or embedded stomata आप कह रहे हैं, तो hidden stomata भी कह सकते हैं कि stomata is hidden inside the tissue। So stomata not directly comes in contact with the hot air because xerophytic condition means the temperature is very high in surrounding and always the hot air is comes in contact with the stomata। So if stomata is located in this way, so rate of transpiration is maximum। तो transpiration की rate को reduce करने के लिए in case of xerophyte we observe the sunken stomata। So sunken stomata you remember in xerophyte stomata present in, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे स्टोमेटा? याद रखिएगा, स्टोमेटा प्रेजेंट इन स्टोमेटल चैम्बर और embedded in tissue। Such stomata decreases the loss of water and conserved for मेटाबॉलिज्म, बिकॉज ऑलरेडी प्लांट में वाटर की डेफिशिएंसी होती है। सो टू रिड्यूस द और टू प्रिवेंट द वाटर लॉस, स्टोमेटा आप याद रखेंगे संकन स्टोमेटा। तो संकन स्टोमेटा अगर आ रहा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को क्या करेंगे? प्रेजेंस ऑफ संकन स्टोमेटा रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो सिंपली यू राइट डाउन
presence of sunken stomata reduces the rate of ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन के रेट को क्या करेगा, ये रिड्यूस करता है ये पार्ट। तो दिस मच नंबर ऑफ फैक्टर यू रिमेंबर। ठीक है, नो व्हेनेवर वी स्टडी द फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, दैट मीन्स वी ऑलवेज सेट वन एक्सपेरिमेंट, and for that experiment we required one apparatus. So what apparatus we used and what is the principle of that apparatus? So basically आप स्टडी करते हैं, पोटोमीटर is the apparatus. Potometer is an apparatus used to detect the rate of transpiration. First thing. Okay. Secondly, आप स्टडी करते हैं कि what is the basic principle of the potometer. लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप अगर सॉल्व कर रहे हैं, so पोटोमीटर का प्रिंसिपल एंड मोस्ट कॉमन पोटोमीटर, most commonly we use Ganong's potometer. Most common is Ganong's potometer. Okay, and principle of potometer, all potometers are principally worked on. प्रिंसिपल क्या होगा, रेट ऑफ water absorption, whatever amount of water is absorbed by the plant, nearly equal amount of water is transpired by the plant. This is the basic principle of all potometer, that rate of water absorption by root is exactly equivalent to rate of transpiration by leaf. ठीक है, so rate of water absorption is equivalent to rate of transpiration. How will you observe कि how much amount of water is absorbed? So generally I don't think you observe Ganong's potometer generally used in schools for explaining the apparatus, but potometer आपका ये समझ लीजिएगा, this type of one reservoir is there, glass tube से connect होता है, here cork and one aperture होता है सेंटर में कॉर्क के, थ्रू दैट अपर्चर वी पोर वन मीजोफिटिक प्लांट। ठीक है, यहाँ पे आप एक प्लांट पोर कर देते हैं, कट करते हैं पहले उस प्लांट को obliquely and then we pour this plant inside. This reservoir is totally filled with water. ठीक है, और इसका आप कनेक्शन आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बुक्स में आपको रेफरेंस बुक में गैनोंग्स पोटोमीटर मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं है, you can go through the reference book. And this is a glass scale tube है, in this tube glass scale is there and then this tube is again 90 डिग्री पे इन्वर्ट हो जाता है and then इसका ये जो एंड है, this end we placed in beaker. किसी भी बीकर में आप इसको प्लेस करते हैं and that beaker, small beaker is again filled with water. One air bubble we enter in this tube and ट्यूब के साइड में यहाँ पे एक स्केल प्रेजेंट होता है, ग्लास का ही है ये स्केल भी, ठीक है, अटैच होता है एंड जीरो से यहाँ पे जैसे आपका नॉर्मल सेंटीमीटर का स्केल है जो आप यूज कर रहे हैं, इन दैट वे 0 to 15 सेंटीमीटर का ही ये स्केल होता है। ठीक है, तो स्केल अटैच होता है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, बबल को एंटर करते हैं, वी अलाउ द एयर बबल एंड एंटायर इसमें थ्रू आउट दिस
वाटर इज फिल्ड। ठीक है, वाटर को फिल करने के लिए यहाँ पे एक स्मॉल अनदर रिजर्वायर होता है, दिस रिजर्वायर इज यूज, और यहाँ पे इसमें स्टॉपर होता है, स्टॉपर के थ्रू इसका कनेक्शन हम कट ऑफ करते हैं। ठीक है, और व्हेनेवर एपरेटस डिमांड वाटर या यहाँ वाटर की डेफिशिएंसी होती है तो रिजर्वायर के थ्रू हम वाटर को यहाँ पे फिल कर देते हैं, या एंटायर एक्सपेरिमेंट में ये रिजर्वायर वाटर के थ्रू फिल ही रहता है। व्हेनेवर रिक्वायर्ड वी ओपन द नॉब एंड देन एपरेटस इज फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, we kept one of the mesophytic plant, China rose plant commonly we use. This China rose plant is adjusted itself inside this apparatus, entire apparatus become airtight, and then we allow the entry of one of the air bubble, and slowly slowly इस air bubble को थोड़ा tilted में बन गया है apparatus। ठीक है, यहाँ stand में fix होता है ये apparatus पूरा, and then this air bubble slowly slowly we took the air bubble at the position of 0, यहाँ होता है 15, यहाँ होता है उल्टा लिखा है। ठीक है, 0 is towards this side and 15 is towards that, so we allow the or set the 0 at the 0 centimeter of the scale, and then whatever apparatus के ऊपर और whatever effect you want to study, sunlight का effect आपको study करना है तो आप apparatus को कहाँ place करेंगे, you place the apparatus in sunlight। विंड का इफेक्ट स्टडी करना है, सो यू कैप द एपरेटस जस्ट बिलो द फैन। ठीक है, तो आपने सनलाइट में प्लेस किया, 20 मिनट्स 10 to 20 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं एपरेटस को सेट होने में, एंड देन आफ्टर प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन बिगिंस, जैसे ही ट्रांसपायर होना यहाँ से वाटर स्टार्ट होता है या प्रोसेस एपरेटस में स्टार्ट होगा, एज द मोर एंड मोर वाटर एब्सॉर्ब बाय दिस रूट बाय दिस ट्विग, जो बबल होगा वो आपका स्लोली स्लोली क्या करेगा, ट्रेवल करना स्टार्ट करता है इट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू एपरेटस ये इस बबल का फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये 0 से कहाँ पे आ रहा है, टुवर्ड्स द 15 सेंटीमीटर के स्केल की तरफ मूव करता है। वॉट एवर डिस्टेंस, टाइम फिक्स करते, यू फिक्स द टाइम फॉर 2 मिनट और 5 मिनट, and within 2 minutes how much distance traveled by the bubble we measure। if bubble measure the more distance, that means the rate of transpiration is high। if bubble measure the low distance, बहुत ही कम distance measure किया है 2 minutes में, then आप calculate करते हैं कि rate of, because directly transpiration related to water absorption, as much as water is if water is absorbed fastly तो bubble भी आपका क्या होगा, more distance को travel करता है। तो ये एक जनरल गैनॉन्स पोटोमीटर का डायग्राम है, एंड ऑल पोटोमीटर, ये आपका बार बार रिपीट हुआ है। द पोटोमीटर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटोमीटर, और ऑन व्हाट प्रिंसिपल पोटोमीटर वर्क्स। so rate of water absorption by root is equivalent to the rate of water transpiration by leaf। ये पार्ट इतना याद रखेंगे, ठीक है। so this part you remember। now after that we come towards the comparison between the transpiration and guttation। यहाँ पे इस पार्ट से जो एक्चुअली एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके आते हैं, सो इन एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन Sunken stomata repeatedly asked, how sunken stomata affect the rate of transpiration। secondly apparatus का name आता है पोटोमीटर, so that you remember। secondly what is the principle of पोटोमीटर आता है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल का पार्ट है। but how to measure the और हाउ टू कैलकुलेट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो ये याद रखेंगे कि बबल्स के डिस्टेंस को मेजर करते हैं। विल्मोट्स बबलर फोटोसिंथेसिस में आप स्टडी करेंगे कि इन फोटोसिंथेसिस वी अगेन यूज वन एपरेटस दैट इज कॉल्ड एज विल्मोट्स बबलर। इन दैट बबलर वी यूज द number of bubbles in a fixed time, how many number of bubbles of oxygen are releases। तो यहाँ आप बबल्स के थ्रू ट्रेवल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है ये मेजर करते हैं, एंड आफ्टर दैट वन अनदर एपरेटस वी यूज, आप लोगों को नहीं यूज करना है 11th एंड 12th क्लास के लेवल पे, बट टर्मिनोलॉजी सेम है, पोटोमीटर है, एंड द नेक्स्ट एपरेटस इज पोरोमीटर। पोरोमीटर यू नोट डाउन, पोरोमीटर is used to detect the diameter of pore of stomata, because stomata is also the identical feature of the plant, it's used in identification of plant। so pore diameter will generally take, and pore diameter को calculate करने के लिए आप किसको यूज करते हैं, वी यूज वन apparatus that is called as porometer। so don't confuse between potometer and porometer, ठीक है।
Now we study about the phenomena of गट्टेशन. तो कंपेरेटिवली ही स्टडी करते हैं बिकॉज जनरली क्वेश्चन आपका कंपैरिजन के फॉर्म में आता है. एंड वेन एवर वी स्टडी गट्टेशन, सो यू रिमेंबर रूट प्रेशर प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ गट्टेशन. गट्टेशन को पहले समझिएगा. गट्टेशन जब आप स्टडी करते हैं, सो नॉर्मली इन मार्जिन्स ऑफ लीव्स, जो मीजोफिटिक प्लांट्स है, सो गट्टेशन वी ऑब्जर्व इन मीजोफाइट, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं, एंड हर्ब्स प्लांट. सो मीजोफाइट एंड हर्ब्स प्लांट, यू रिमेंबर herbaceous plant and mesophytic plant show the loss of water in the form of droplets, and secondly these droplets only lost from the margins of the leaves. ठीक है, फ्लैट सरफेस से कभी भी आपका गट्टेशन का फिनोमिना नहीं होगा. गट्टेशन इज ऑलवेज बी ऑब्जर्व फ्रॉम द टिप ऑफ द लीव्स और द मार्जिन्स ऑफ द लीव. सो लॉस ऑफ वाटर फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में लॉस हो रहा है वाटर? वाटर इज लॉसेज इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. ठीक है, एंड एज वेल एज ये ड्रॉपलेट्स का लॉस किस पार्ट से? ड्रॉपलेट्स आर लॉस फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स. तब हम कहते हैं कि ये फिनोमिना क्या है? गट्टेशन है. ये पार्ट याद रखेंगे. सेकेंडली गट्टेशन में याद रखेंगे कि नॉट ओनली प्योर वाटर बट अलोंग विथ प्योर वाटर स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और फूड इज ऑल्सो लॉस. क्यों लॉस होता है सॉल्यूट? बिकॉज रूट प्रेशर, गट्टेशन ओनली टेक प्लेस इन दोज प्लांट वेयर द रूट प्रेशर इज वेरी हाई. अब रूट प्रेशर क्या है याद रखेंगे. तो रूट प्रेशर जब आप स्टडी कर रहे हैं, तो डे टाइम में तो देखिए रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रेट ऑफ एक्सपीरेशन इज नियरली सेम, बट एट नाइट टाइम व्हाट इज हैपनिंग? नाइट में आप स्टडी करते हैं, ट्रांसपीरेशन का फिनोमिना स्टॉप हो गया. सो एट नाइट टाइम, केवल समझिएगा ये पार्ट, एट नाइट टाइम द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन इज स्टॉप ड्यू टू द पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा. Stomata never closed completely, though it is mentioned कि stomata closed at night time, but close का meaning है that partially closed, क्योंकि gaseous exchange always भी take place through the stomata. Only transpiration के process के लिए stomata closed होते हैं. ठीक है, so transpiration stops at night time, but even after that water absorption का phenomena, root air water absorb करते हैं. So water absorption is कंटिन्यूस फिनोमिना. आप कहते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन इज कंटिन्यूसली टेक प्लेस, एंड व्हेन कंटिन्यू वाटर एब्जॉर्प्शन इज टेक प्लेस, देन व्हाट इज हैपनिंग? ये जो रूट सेल्स हैं, अगर आप ये स्टडी कर रहे हैं कि दिस इज द रूट ऑफ द प्लांट एंड इन दिस रूट दीज आर द कॉर्टेक्स सेल्स. जस्ट एक एक्सप्लेनेशन के लिए कह रहे हैं क्योंकि रूट का डायग्राम स्टडी किया है आप लोगों ने. सो इन द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट when continue water absorb at night time, so water यहाँ पे आके क्या हो जाता है? excessive deposition of water is take place. टर्जर प्रेशर हाई हो गया का, एंड एज द टर्जर प्रेशर हाई, ऑस्मोटिक प्रेशर तो नील ही रहेगा. रूट में तो आप हमेशा याद रखेंगे वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज लो बिकॉज सेल्स ऑफ द रूट्स आर ऑलवेज सैचुरेटेड विथ वाटर. बट एट नाइट टाइम ऑस्मोटिक प्रेशर और डिक्रीज हो जाता है क्योंकि मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट. तो यहाँ पे ये जो वाटर है, दिस stored water in root at night time causes a hygroscopic pressure और hydrostatic pressure आप कहते हैं. That pressure is called as root pressure. The pressure raised by the water molecule at night time because the rate of transpiration is negligible or the phenomena of transpiration is stopped. तो यहाँ पे ये जो प्रेशर रेज हुआ है, that pressure is called as root pressure. एंड दिस रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल, पॉजिटिव प्रेशर है क्योंकि वाटर के डिपोजिशन से डेवलप होता है. सो इट इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव प्रेशर, एंड दिस पॉजिटिव प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ वन स्ट्रक्चर लीफ के मार्जिन्स पे. One another structure is present that is called as hydatodes, and hydatodes are responsible for guttation. So positive root pressure in root opens the hydatodes, and due to opening of hydatodes water loss take place in the form of droplet, and that phenomena is exactly called as guttation. ठीक है, तो फर्स्ट अब आप डिफरेंसेस लिखेंगे कि what is the difference between the guttation and transpiration, and then after we come towards the transport of food across the phloem. ठीक है,
transpiration and गट्टेशन। ठीक है, अगेन ब्लर हुआ है बोर्ड। 7 के प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन फ्रॉम पोटोमीटर। ओको वेट, पोटोमीटर के बाद का पोर्शन। ठीक है, पोटोमीटर का मीनिंग तो क्लियर था बेटा। पोटोमीटर का मीनिंग होता है apparatus which we use for measuring the rate of transpiration, that is called as potometer. Potometer आपका Genonx was the scientist who developed one potometer, so that potometer is called as Genonx potometer. Wilmot's number of potometers है हमारे पास, ठीक है। टू मोस्ट कॉमन है Genonx एंड Wilmot's, बट कॉमनली आप जब लेबोरेटरीज में देखते हैं तो Genonx पोटोमीटर भी यूज। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पोटोमीटर इज Genonx पोटोमीटर। अब जो apparatus है वो क्या प्रिंसिपली वर्क करेंगे, तो एक क्वेश्चन बार बार आपको आता है कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच पोटोमीटर्स आर वर्क। सो ऑल द पोटोमीटर्स एक ही बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। देखिए, प्लांट वाटर को ट्रांसपायर्ड कर रहा है, वो हम फील कर सकते हैं व्हेन वी कम इन कॉन्टैक्ट विद द ह्यूज ट्री, बट वी कांट अपियर दैट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इज टेक प्लेस। ठीक है, आप फील कर सकते हैं, बट वाटर एब्जॉर्प्शन को आप अपियर कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ बबल इन ग्लास ट्यूब। as much as high rate of water absorption take place by twig or root, तो मूवमेंट जो बबल का होता है वो एब्जॉर्प्शन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है। सो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट बबल इन द पोटोमीटर। ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन का रेट हमेशा याद रखेंगे कि किसके इक्विवेलेंट है, वाटर जितना ट्रांसपायर्ड होता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी रेज हो सकता है स्टूडेंट्स के थ्रू कि देन व्हाई द प्लांट, जब प्लांट एंटायर वाटर ट्रांसपायर्ड ही कर रहा है, then what is the necessity to absorb the water? So actually along with water plant absorb the mineral and nutrients, and these mineral nutrients with the help of ascent of sap reaches towards the leaves. Leaves में इन mineral nutrients का use होता है in the synthesis of organic compound, amino acid, fatty acids। ठीक है, ये फॉर्म होंगे, अमीनो एसिड से फिर प्रोटीन फॉर्म होते हैं, फैटी एसिड से फैट और लिपिड फॉर्म होंगे। तो जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आपके वाटर के साथ एब्जॉर्ब होते हैं वो लीफ में आके यूटिलाइज्ड होते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वाटर 99.9% वाटर ट्रांसपायर्ड होता है, 0.1% वाटर इज ऑलवेज यूज्ड इन द मेटाबॉलिक। और कंटिन्यू एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, ऐसा तो है नहीं कि वन टाइम उसने एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लिया है फिर वो वाटर पूरा का पूरा यूटिलाइज करेगा, दैट काइंड ऑफ प्रोसेस नहीं है। इट इज अ रेगुलर प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट। रूट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड लीव्स जो है वो वाटर को क्या कर रहे हैं, ट्रांसपायर्ड करते हैं। एब्जॉर्प्शन के समय वाटर के साथ मिनरल न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब होते हैं, but during the transpiration only pure water is transpired, none of the element mineral nutrient is present in transpired water, और वो वेपर के फॉर्म में ट्रांसपायर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट याद रखिएगा। पोटोमीटर में एक बार चेक कर लीजिएगा फिर से वीडियो जब अवेलेबल होते होंगे, तो पोटोमीटर किस प्रिंसिपल्स पे वर्क कर रहे हैं वो याद रखिएगा। एंड हाउ डज द बबल ट्रेवल, तो बबल एब्जॉर्प्शन के थ्रू ट्रेवल करेगा, क्योंकि वाटर जब एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो जो ग्लास ट्यूब है उसमें काइंड ऑफ सक्शन प्रेशर डेवलप होता है। ड्यू टू दैट सक्शन प्रेशर बबल इज ट्रेवल टुवर्ड्स द ट्विग और टुवर्ड्स द एरिया वेयर द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज हाई। ठीक है, तो ये पार्ट इतना याद रखिएगा। अब गट्टेशन को हम स्टडी करते हैं एंड अलोंग ट्रांसपिरेशन गट्टेशन थ्योरी में ये एज इट इज आपका पार्ट आता है डिफरेंस के फॉर्म में। तो ट्रांसपिरेशन अब क्लियर है, ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, एंड गट्टेशन आप स्टडी करते हैं लॉस ऑफ water in the form of droplet।
ठीक है। सेकेंड, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस इज टेक प्लेस फ्रॉम surface of leaf and guttation is take place from margins or tips of leaf। ठीक है, तो मार्जिन्स ऑफ लीफ के थ्रू प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकेंडली, स्टोमेटा पार्टिसिपेट in transpiration, but here you remember हाइडे थॉट्स फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे होंगे 11th में ये नेम। अर्लियर आपने वाटर स्टोमेटा स्टडी किया होगा। वाटर स्टोमेटा इज डजंट मीन कि स्टोमेटा प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, इन एक्वेटिक प्लांट स्टोमेटा आइदर एब्सेंट or if present, so functionless stomata are present in aquatic plant because plant itself present in water, तो प्लांट को रिक्वायर्ड ही नहीं है वाटर को एब्जॉर्ब करना और ट्रांसपायर्ट करना। सो एक्वेटिक प्लांट ऑलवेज शो द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्टोमेटा और नॉन फंक्शनल स्टोमेटा। वो हाइडेथोड्स का मीनिंग है कि स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोमेटा के जैसे ही स्ट्रक्चर है बट दे लॉसेस द वाटर व्हेन एक्सेस root pressure is available. So hydrathodes or water stomata are responsible. नेक्स्ट आप पढ़ते हैं ट्रांसपिरेशन में ओनली प्योर वाटर इज lost, but here in addition to water, small amount of organic solute also lost। यहाँ पे देखिए नेगेटिव प्रेशर is responsible for the process। ऑस्मैटिक प्रेशर डिक्रीज इंक्रीज होता है यहाँ पे बिकॉज ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूसली कॉजेज अ लॉस ऑफ वाटर एंड ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर देयर इज ऑलवेज अ डिमांड फॉर वाटर एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज ट्रेवल टुवर्ड्स द लीव्स। तो प्रेशर ट्रांसपिरेशन के लिए क्या है, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है एंड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस। बट गट्टेशन आपका किसके थ्रू कॉज हो रहा है, रूट प्रेशर के थ्रू। सो दिस इज अगेन वन डिफरेंस, पॉजिटिव pressure that is root pressure is responsible। ठीक है, एंड नेक्स्ट डिफरेंस, लास्ट डिफरेंस लिखेंगे कि ट्रांसपिरेशन कब होता है, डे टाइम प्रोसेस is take place during डे टाइम। यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि जो प्रोसेस है गट्टेशन का
processes take place at midnight or in early morning. ठीक है, तो ये डिफरेंसेस याद रखेंगे कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस एंड आफ्टर दैट फॉर गट्टेशन आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे. The spatial arrangement of cells present in the leaf of mesophytic plant which show the process of guttation. ठीक है, जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर मेन प्रिंसिपली मेन सेल्स वी ड्रॉ हियर. ठीक है, दिस इज द एपिडर्मिस of leaf, below epidermis, palisade, parenchyma. Rectangular cells are always represent palisade, parenchyma and show the linear arrangement of chlorophyll pigment. So this is palisade, parenchyma. यहाँ पे आपका spongy parenchyma, hardly 2 or 3 cells we are showing. Loosely arranged cells of spongy mesophyll or spongy parenchyma. So quite loosely arranged cells. So this is spongy parenchyma. And both spongy parenchyma and palisade parenchyma को combinedly आप क्या कहते हैं? Combinedly this both layers are called as mesophyll. So in leaf, mesophyll tissue is mainly made up of spongy parenchyma and so mesophyll. यहाँ पे ये पार्ट देखिए, वेस्कुलर स्ट्रैंड, जाइलम इज प्रेजेंट, बिसाइड जाइलम फ्लोएम लोकेटेड है. ठीक है, सो सिंपली यू मेंशन दैट एंड दिस इज द स्पेशल टिश्यू. You note down the color of this tissue by colored pen. That epitheme. Epitheme is only present at two sites. In epiphytic plant, we observe the epitheme as well as the plant where the leaves show the phenomena of guttation. Those plant only show the epitheme. Epitheme के नीचे आप लिख लेंगे water storage tissue. The spatial tissue which is responsible for the storage of water, that is called as epitheme. Question आपको एग्जाम में आ रहा है कि which of the following is a hygroscopic tissue. So hygroscopic tissue means always remember epitheme, either present in epiphytes or present in mesophytic plants.
These are the hydrathodes. यहाँ पे ये जो एक डॉटेड लाइन के फॉर्म में अपीयर हो रहा है, दिस इज वाटर चैम्बर वेयर द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज स्टोर एंड व्हेन रूट प्रेशर इज हाई, hydrathodes ओपन एंड वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। तो ये वाटर ड्रॉपलेट आप शो कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर विच वी ऑब्जर्व in the leaf, ठीक है, internal structure of the leaf. Why normal leaf are not showing guttation? Because epitheme is absent in those leaves, water cavities are absent in those leaves. Whenever leaf, mesophytic plant में ट्रांसपीरेशन में एक डिफरेंस अनदर आप याद रख सकते हैं कि ट्रांसपीरेशन यूनिवर्सली टेक प्लेस इन ऑल प्लांट, हर्ब, श्रब, ट्रीज एंड ऑल कैटेगरीज के जो प्लांट है, दे ऑल आर शोइंग द ट्रांसपीरेशन, बट guttation is only appear in mesophytic plant and herbaceous plant. Mesophyte tree or mesophyte shrub never show the phenomena of guttation. Early morning grasses के ऊपर देखिए ड्यू ड्रॉप्स के जैसे आपको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर अपीयर होता है, that is only because of the phenomena of guttation. So tip of the leaves or margins of the leaf. टोमेटो के प्लांट्स अगर होंगे तो अर्ली मॉर्निंग उनको देखिए, अर्ली मॉर्निंग आपको टोमेटो के लीव्स में भी ब्रिंजल के लीव्स हैं, टोमेटो के लीव्स हैं, वहां पे आपको ये फिनोमिना क्लियरली अपीयर हो जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट याद रखेंगे गट्टेशन के लिए। एंड विद दिस ट्रांसपीरेशन एंड गट्टेशन का जो टॉपिक था एंड द फिनोमिना रिलेटेड टू वाटर, लास्ट क्लासेस से हम लोग कुछ स्टडी कर रहे थे, दैट एंटायर वाटर ट्रांसपोर्ट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। नाउ वी कम टुवर्ड्स द ट्रांसपोर्ट विच इज टेक प्लेस इन फ्लोएम। फ्लोएम में जब आप ट्रांसपोर्ट स्टडी करते हैं तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट मीन्स ओनली रिमेंबर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड किसके फॉर्म में है प्लांट में? सोल्यूट जो है प्लांट में वो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रेवल करता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो वो पार्ट अब ये ड्रॉ करें, तब तक अपन ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया होगा। ऑल सेल्स ड्रॉ नहीं किए बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेल्स फिर सिमिलर ही है। And in exam also you make a habit to draw the diagram in this way only, because that much of time नहीं होता है आपके लिए कि आप entire cells draw करें. Now the next topic, food translocation. ठीक है, एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, सो अबाउट दैट 2 पैराग्राफ्स रिलेटेड है, समराइज किया है उन पैराग्राफ्स को फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द जाइलम, 190 पेज के फर्स्ट 2 पैराग्राफ। उसके बाद आपका है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट और फूड ट्रांसलोकेशन आप स्टडी कर रहे हैं, फ्लोएम में सैप का ट्रांसपोर्ट। इन दोज पैराग्राफ, रीड दोज पैराग्राफ वेरी केयरफुली, क्योंकि जाइलम एक्सक्लूड लिखा है या जाइलम में जो सैप है वो लिखा है कि जनरली आप स्टडी करते हैं कि जाइलम इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए, ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, जहां पे फूड ट्रांसपोर्ट आपका स्टार्ट हो रहा है उसके जस्ट अबव पैराग्राफ, या 190 नंबर का पेज है। न्यू बुक्स में हो सकता है 191 हो, मेरे पास ओल्ड बुक है क्योंकि, तो 190 पेज नंबर पे जो आपका पैराग्राफ है, सेकेंड पैराग्राफ, उसमें दिया हुआ है कि जाइलम नॉट ओनली शो द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बट इन एडिशन टू दैट सम ऑफ द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को भी ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। तो जो कन्वेंशनली हम स्टडी करते आ रहे हैं कि जाइलम फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट एंड फ्लोएम फॉर फूड ट्रांसपोर्ट, साइंटिफिकली इट इज रॉन्ग। जाइलम में वाटर ओनली ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, अलोंग विथ वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फेट भी आपका ट्रांसपोर्ट होता है। नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दिया है कि नाइट्रोजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, एंड सिमिलरली वो पैराग्राफ रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, बाद में रीड करिएगा।
and similarly phosphate and sulfur also transported in organic form. तो जहां पे सल्फर का ऑर्गेनिक फॉर्म लिखा होगा वहां पे आप लिख लेंगे, क्योंकि जो फॉस्फेट है वो फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट कर जाता है, बट आप स्टडी करते हैं कि सल्फर, सल्फर का जहां पे लिखा है कि सल्फर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड इन ऑर्गेनिक फॉर्म, वहां पे नोट कर लीजिएगा या तो कि सल्फर आपका ऑर्गेनिक फॉर्म में अमीनो एसिड्स के फॉर्म में ओनली ट्रांसपोर्ट करता है, एंड एट दैट पॉइंट यू राइट डाउन कि सिस्टीन एंड मिथियोनिन, टू अमीनो एसिड्स हैं ये, सिस्टीन एंड मिथियोनिन, sulfur containing amino acid. ओके, सो व्हेनेवर आपको क्वेश्चन आता है अगर कि सल्फर ऑर्गेनिक फॉर्म में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में और एज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सल्फर इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस, तो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। सल्फर, नाइट्रोजन एंड स्मॉल अमाउंट में फॉस्फेट ट्रांसपोर्टेड अलोंग विथ वाटर, एक्सेप्शनल कंडीशन है इन दैट पैराग्राफ, यू रिमेंबर वेरी वेल, बिकॉज नॉर्मली आप यही स्टडी करते हैं कि फूड मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड फूड ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द फ्लोएम एंड वाटर ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस अक्रॉस द जाइलम, बट कन्वेंशनली पढ़ते हैं आप, साइंटिफिकली इनका ट्रांसपोर्ट नाइट्रोजन एज अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट करते हैं किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। तो सल्फर आपका ओनली 2 ही अमीनो एसिड्स में, सिस्टीन एंड मिथियोनिन में, वो पार्ट आप नोट करके रखेंगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर यहाँ पे आप आ रहे हैं कहाँ पे, फूड ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जब आप स्टडी करते हैं, ट्रांसलोकेशन, व्हाई वी यूज ऑफ टर्म ट्रांसलोकेशन, ये क्लियर होगा जिन्होंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास अटेंड की होगी। अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। एक्सक्यूज मी, सॉरी। फूड ट्रांसलोकेशन by phloem, secondly as sucrose solute भी कह रहे हैं, food translocate in sieve tube of phloem, because sieve tube is a conducting element of the phloem. okay, नेक्स्ट यहाँ पे एडिशनली लिख लेंगे ग्लूकोज, photosynthetic sugar है, because it is formed in photosynthesis, so it is a photosynthetic sugar. Sucrose पोर्टेबल शुगर है, दैट ट्रांसपोर्टेबल और पोर्टेबल आपको क्वेश्चन आता है, तो पोर्टेबल शुगर, द शुगर विच इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, that sugar is portable sugar. So sucrose is a portable sugar, and cellulose or starch are storage sugar. These are the form of storage. So these are the 3 types of sugar which present in plant. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है, देन ग्लूकोज, सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज गेट कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज, मॉडिफाइड, ब्लर हो गया है फिर से बोर्ड ना, रिपीटेडली अभी हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये पार्ट याद रखेंगे कि ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च, ये 3 डिफरेंट आपके फॉर्म है शुगर्स के, एंड दीज 3 डिफरेंट फॉर्म्स आर अवेलेबल एट डिफरेंट साइट्स। क्या होंगे आपके साइट्स, द सोर्स एंड सिंक, 2 टर्म्स नाउ वी यूज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी स्टडी फॉर द फ्लोएम सेप। टिल टुडे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट मीन्स आपने यही स्टडी किया है कि फूड इज सिंथेसाइज इन लीफ, and from the leaf food is transported towards the downward direction, mostly towards the root, because root can't synthesize their food. ठीक है, बट अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड से रिमूव कर देंगे, and only remember whenever we study about the food transport or food translocation or phloem transport,
The transport of food is always be take place from the source towards the sink. What is source? Source means the area of the plant where the food is synthesized और food is stored. ठीक है, दो ऐसे एरिया है प्लांट के सोर्स का मीनिंग लीफ है एक तो सोर्स जहाँ पे फूड की सिंथेसिस हो रही है, बट अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट ऑल्सो शो द स्टोरेज ऑफ फूड. पोटेटो राइजोम्स आपने स्टडी किए, ट्यूबर्स पोटेटो के फॉर्म में, कॉर्न, bulb, number of structures are there which responsible for the excess amount of storage of food. So the area where food is stored that also function as a source for the transport of phloem. ठीक है, तो source means the area where the food synthesized or the area where the food is stored, that is called as source. एंड व्हाट इज सिंक? सिंक का मीनिंग होता है कि प्लांट का वो एरिया जहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट है. सो द एरिया वेयर द फूड इज रिक्वायर्ड, रूट हो सकता है, न्यूली प्लांट. एक डायग्राम आपका दिया है वहां पे देखिए बर्ड को शो किया है, अगर फ्लोरल बर्ड है एंड दैट फ्लोरल बर्ड इफ डेवलप इनटू अ न्यू फ्लावर, so at the time of development of floral bird also you remember we need a plant need a huge amount of food. So in that case that floral bird is also a sink. न्यूली इमर्जिंग लीव्स, न्यूली डेवलपिंग लीव्स, अगर न्यू लीव्स फॉर्म हो रहे हैं तो न्यूली इमर्जिंग लीव्स में इमीडिएट फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं. इनिशियली द डेवलपमेंट ऑफ लीफ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड द ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड. वंस द लीफ ऑब्टेन specific mass या specific volume, then only that leaf start the photosynthesis, but up to that time that leaf also need a food. तो वहां पे फूड का ट्रांसपोर्ट आपका क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. ठीक है, तो ये पार्ट याद रखिएगा. एक तो एज अ सुक्रोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाई. सेकेंडली सुक्रोज किसके थ्रू फॉर्म होता है, तो ग्लूकोज, स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एवरी टाइम फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज. ठीक है, व्हेन कंबाइंड then they will result in the formation of sucrose. Sucrose is a non-reducing sugar and sucrose is insoluble in water. ठीक है, दैट्स वाई ग्लूकोज कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता है प्लांट में. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज अगर फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होना ग्लूकोज स्टार्ट करेगा तो ग्लूकोज इमीडिएटली डिसॉल्व इन वाटर, और जैसे ही ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व होगा सो इटसेल्फ जो फ्लोएम के सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल्स है, वो उस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट करते हैं एंड देन वट एवर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हैज टू रीचेस टुवर्ड्स द रूट और टुवर्ड्स द सिंक, इट नॉट कंप्लीटली अवेलेबल. तो एंटायर अवेलेबिलिटी के लिए पहले ग्लूकोज नॉन डिसॉल्व फॉर्म में और इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है सुक्रोज में. फिर ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, सुक्रोज का, सुक्रोज के फॉर्म में. देन सपोज रूट रिक्वायर्ड दैट फूड, तो रूट के सेल्स में आके सुक्रोज फिर ब्रेक होता है आपका इन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड देन दैट ग्लूकोज इज नाउ स्टार्ट टू यूटिलाइज फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये डिफरेंट फॉर्म्स है. सेकेंडली ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होता है, ब्लैक पेन से या स्टार करके लिखेंगे कि इन फ्लोएम बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट इज टेक प्लेस. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट किस तरह से, बाई डायरेक्शनल, टू डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट है. सो बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट इज टेक प्लेस. नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस फ्रॉम सोर्स टू सिंक. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट फ्लोएम में लीफ से रूट यही रखेंगे. अब याद रखेंगे ओनली कि ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज बी टेक प्लेस फ्रॉम सोर्स टू सिंक. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज सोर्स? सोर्स area where food is stored or synthesized. And sink area
where food is required. मास फ्लो हाइपोथेसिस है इसके लिए, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस, एंड दैट हाइपोथेसिस वी यूज टू एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. टू इम्पोर्टेंट टर्म्स आप पढ़ते हैं, लोडिंग एंड अनलोडिंग. ठीक है, लोडिंग का मीनिंग है कि ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट होगा एंड देन सुक्रोज एंटर इन फ्लोएम. तो वो पार्ट अभी हम सब पढ़ेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं. तो दिस इज लिटिल बिट क्वाइट थ्योरेटिकल टॉपिक है या बोरिंग टॉपिक है. बच्चों को जनरली ये कॉन्सेप्ट फ्लोएम का ही क्लियर नहीं होता है, जो एक्चुअल बता रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअली फ्लोएम के एलिमेंट्स क्लियर होने चाहिए कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोएम. ठीक है, ट्रांसपोर्टेबल एलिमेंट क्या है? ट्रांसपोर्टेबल एलिमेंट इज अ सीव ट्यूब. सीव ट्यूब्स आर ऑलवेज एसोसिएट विद कंपेनियन सेल. तो यहाँ पे आप जब नेक्स्ट पेज पे, जिस पेज पे डायग्राम दिया है, ऑन दैट पेज व्हेन यू कम टुवर्ड्स द रीडिंग, वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट है एनसीईआरटी का, अगेन वन पैराग्राफ, बिकॉज टू मच ट्विस्टिंग है वहां पे वर्ड्स की एंड वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट है, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स नहीं है. एंड सेकेंडली कंपैरेटिवली वोकैबुलरी ऑल्सो, वोकैबुलरी डिफिकल्ट नहीं है, टर्म्स है वहां पे. लोडिंग वर्ड दिया है, अनलोडिंग है. लोडिंग का मीनिंग है कि मीजोफिल में जो फूड सिंथेसाइज हुआ है वो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है. तो फ्लोएम में एंटर होने प्रोसेस को, फूड का फ्लोएम में एंट्री, लोडिंग कहलाता है. फ्लोएम से फूड अगेन व्हेन रिटर्न बैक इनटू द सेल्स, देन इट इज कॉल्ड एज अनलोडिंग. ठीक है, तो वो पार्ट थोड़ा याद रखेंगे. लोडिंग हमेशा कहाँ पे होता है? सोर्स पे. अनलोडिंग ऑफ द फूड इज ऑलवेज बी टेक प्लेस एट द साइट ऑफ द सिंक. तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली इस प्रोसेस को समझिए कि हाउ द फिनोमिना ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस इन बाई डायरेक्शनल वे. सिंपलेस्ट एग्जाम्पल के फॉर्म में समझिए, देन वी कम टुवर्ड्स द राइटिंग सेक्शन. मास फ्लो को पढ़ते हैं. प्लांट है आपके पास, नॉर्मल कंडीशंस आर देयर, रूट, ठीक है, एंड यहाँ पे लीव्स हैं. ये जो आपके लीव्स हैं, ये अभी आपका जो व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल, ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन. So this area is function as a source. One of the most important statement is provided in NCERT when you begins with the study of phloem sap, transport of phloem sap, that the जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन सोर्स एंड सिंक इज डिपेंड ऑन सीजन एंड प्लांट नीड. वो जो स्टेटमेंट है वो अंडरलाइन करके रखेंगे. ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ स्टेटमेंट में रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है कि रिलेशन बिटवीन द सोर्स एंड सिंक इज डिपेंड ऑन सीजन एज वेल एज ऑन प्लांट नीड. सीजन के बेस्ड हम स्टडी करते हैं सबसे पहले, फिर प्लांट नीड समझ में आएगा. और यहीं पे आपका वो जो डायग्राम है, इसमें एक दिया हुआ है कि टुवर्ड्स दिस साइड वन फ्लोरल बर्ड प्रेजेंट है. ये फ्लोरल बर्ड हमने शो कर दिया है. ठीक है, एक रफली स्ट्रक्चर के फॉर्म में. अब देखिए, आपका अगर फूड सोर्स के फॉर्म में लीफ के थ्रू सिंथेसाइज हुआ है, सो फ्रॉम दिस दीज लीव्स फूड वाया फ्लोएम ऑटोमेटिकली उसी रूल में ट्रांसपोर्ट होगा जो हम पढ़ रहे हैं कि लीव्स से फूड इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द रूट. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. एट द सेम टाइम दिस फ्लोरल बर्ड ऑल्सो रिक्वायर्ड द फूड. ये टॉप मोस्ट है, यहाँ पे आप मान लीजिए इसके ऊपर एपिकल मेरिस्टेम है, देर इज नो अनदर लीव. सो दिस ग्रोइंग फ्लोरल बर्ड ऑल्सो नीड अ फूड. तो ये आ गया आपका कि पार्ट नीड, प्लांट को नीड कहाँ पे? प्लांट इन एडिशन टू रूट, प्लांट नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड फॉर दैट फ्लोरल बर्ड. सो इन दैट केस फ्रॉम द leaf food also start to move towards the floral bird. upwardly भी move कर जाएगा. ठीक है, and major amount of food is moved towards the root. root आपका इस condition में required part है, so root function as a sink in one season. ठीक है, but in autumn season or in spring season, suppose the plant shedded all the leaves, foliage आप appear करते हैं, और in deciduous trees आप स्प्रिंग में अपियर करते हैं कि लीफ फॉल इज टेक प्लेस. ठीक है, आप अपने सराउंडिंग में आप ट्रीज को अपियर करिए, लीफ फॉल अपियर होना उसमें स्टार्ट हो जाएगा. तो लीफ फॉल जब आप अपियर कर रहे हैं, सो नाउ स्लोली स्लोली, अब बर्ड को भी हटा दीजिए, बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट हो गया. नाउ द प्लांट इज कंप्लीटली, ये जो सोर्स था इसमें ओनली ट्विग्स सब आपको दिख रहे हैं, बट नन ऑफ द लीव्स आर प्रेजेंट बिकॉज ऑल द एंटायर लीव्स आर शेडेड बाय द प्लांट ड्यू टू लीफ फॉल. ठीक है, एंड इस रूट ने क्या किया था? स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड इज स्टोर्ड इनसाइड द रूट. व्हेन रेगुलर सप्लाई रूट में फूड की हो रही है, एट दैट टाइम दिस रूट स्टोर अ
स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। नाउ सीजन चेंज हुआ, ठीक है, एज द सीजन चेंज लीफ फॉल इज टेक प्लेस एंड नाउ व्हेन द बिगिनिंग और द इमर्जेंस ऑफ न्यू लीव्स इज बिगिंस। अब जब न्यू लीव्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, so for the formation of new leaves on the branches or twigs, the much more amount of food is required. So whatever amount of food अब रूट ने उस समय पे अपने फेवरेबल कंडीशंस में स्टोर किया था, that food from the phloem now start to move towards the upward direction. So now अब देखिए phloem food का डायरेक्शन क्या हो गया, ऑपोजिट हुआ। इन फेवरेबल सीजन और इन वन सीजन फूड इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द रूट, क्योंकि रूट उस समय सिंक के तरह बिहेव कर रहा था एंड एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बिहेव एज अ सोर्स। बट नाउ व्हेन द लीफ फॉल इज टेक प्लेस, so due to leaf fall this root now function as a source and this aerial surface required or demand for food, so now it behave as a sink, and that's why that statement is provide the relation between source and sink depends on season as well as on plant needs। ठीक है, तो सोर्स से कहां पे आया, ये सिंक के टुवर्ड्स मूव कर गया एंड स्लोली स्लोली ये लीव्स अब क्या हो गए, आपके लीव्स आर फॉर्म एंड अगेन अब सिंक से सीजन फिर फेवरेबल हो गया, सो नाउ द सिंक बिकम कन्वर्ट इनटू सोर्स, और ये जो रूट है ये फिर अब आपके किस में कन्वर्ट हो गए, रूट बिहेव एज अ सिंक बिकॉज नाउ ये जो स्टोर्ड फूड था ये आपका नियरली लॉस हो चुका है या यूटिलाइज्ड हो चुका है एंड नाउ फर्दर रूट रिक्वायर्ड अ फूड फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो अब ये जो फूड है ये फिर किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड। तो ये टोटल डिपेंड करता है सीजन के ऊपर। इन वन सीजन एरियल सरफेस में भी सोर्स, so in another season underground part of the plant may be function as a sink, this part you remember very well, okay। और source and sink का मीनिंग अब क्लियर है कि source means the food synthesizing area और storage area, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट अब जब आप ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं तो ये कलर्ड पेन से नोट कर लेंगे, स्टेटमेंट रिलेशन बिटवीन source and sink is depends on season and सीजन के साथ साथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, द रिलेशन बिटवीन सोर्स एंड सिंक इज डिपेंड ऑन सीजन एंड प्लांट। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन सीजन एंड प्लांट नीड्स। सेकेंड आप स्टडी करते हैं, इन वन सीजन एरियल सरफेस is source but in next season it become sink। तो जो सोर्स है वो सिंक हो सकता है या सिंक किस में कन्वर्ट होगा, सोर्स में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एंड क्यों सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है ये भी समझिए। दिस इज अ सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम, sieve tubes always surrounded by companion, this is one sieve tube, this is another sieve tube, both the sieve tubes are having small pores called sieve pore area is called as sieve plate area, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट है वो ओनली पोर टू पोर होता है, तो पोर्स के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होगा इधर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये फर्स्ट याद रखिए। अब अगर सुक्रोज नहीं होता यहाँ पे, मान लीजिए कि ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड, so water is also required for the transport because glucose molecule glucose और solute के form में glucose और sucrose on its own can't be transport, so for their transport water is always be required, ये बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है।
कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज सुक्रोज अगर आप स्टडी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड स्टडी कर रहे हैं, इट डजंट मीन्स कि ओनली सुक्रोज ट्रेवल करेगा, सुक्रोज अलोंग विथ वाटर ट्रेवल करते हैं, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ ही ट्रेवल करेगा यहाँ पे, तो यहाँ वाटर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। एंड व्हेन द ग्लूकोज इज एंटर इन सीव ट्यूब्स, एंट्री ऑफ ग्लूकोज, अगर मान लीजिए ग्लूकोज ट्रेवल करता होता, तो ग्लूकोज इफ ट्रेवल इन सीव ट्यूब वेयर वाटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो ये ग्लूकोज आपका डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, ठीक है। और ये जो सीव ट्यूब के सेल है, सीव ट्यूब के साइड बाय साइड कंपेनियन सेल है, दीज सेल्स स्टार्ट टू यूटिलाइज दैट ग्लूकोज फॉर देयर ओन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। दैट्स व्हाई टू अवॉइड दिस कंडीशन प्लांट डेवलप वन मैकेनिज्म ड्यू टू विच, अभी आपका सीव ट्यूब है, ठीक है, स्टेम में दिस इज अ पीटियोल एंड दिस इज द लीफ, लीफ के ये मीजोफिल के सेल्स आप स्टडी कर रहे हैं, एंड दिस इज द फ्लोयम एंड जाइलम, ठीक है, वेस्कुलर बंडल में। नाउ इनसाइड द लीफ और इनसाइड द मीजोफिल फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो ग्लूकोज ही फॉर्म होगा, बट दिस ग्लूकोज नियरली 60-40 के रेशो में, 60% तो ग्लूकोज ही रहता है, 40% ग्लूकोज जो 100% ग्लूकोज जो फॉर्म होता है आउट ऑफ दैट 60% ग्लूकोज रिमेन एज अ ग्लूकोज, बट 40% ग्लूकोज गेट मॉडिफाइड इनटू आइसोमेरिक फॉर्म फ्रक्टोज, फ्रक्टोज कीटोज शुगर है और ग्लूकोज आपका एल्डोज शुगर होता है, बायोमोलिक्यूल्स में स्टडी किया होगा आपने, तो फ्रक्टोज आपका कीटोज शुगर के फॉर्म में, आइसोमेरिक फॉर्म में फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ, देन इनसाइड द सेल itself फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होके किसका फॉर्मेशन करते हैं, सुक्रोज का, एंड नाउ दिस सुक्रोज फ्रॉम द मेसोफिल सेल एंटर इनटू द फ्लोएम। रीड एनसीईआरटी वेरी केयरफुली, क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि ड्यूरिंग लोडिंग, इस फिनोमिना को हम कहते हैं लोडिंग ऑफ सुक्रोज और लोडिंग फिनोमिना। सो लोडिंग मीन्स सुक्रोज which synthesize in leaf mesophyll cells, from mesophyll it enter in phloem, so which cell of phloem, so first it enter directly sieve tube में enter नहीं होगा, ठीक है, first it enter in companion cell and then after through plasmodesmata it enter into the sieve tubes, क्योंकि आपने स्टडी किया था companion cell and sieve tubes are the sister cells, रिकॉल करेंगे प्लांट एनाटॉमी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड बोथ आर इंटरकनेक्टेड विथ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स और प्लाज्मोडेस्मेटा। तो पहले फूड लोडिंग की प्रोसेस में कंपेनियन सेल में एंटर होगा, वाया कंपेनियन सेल इट एंटर इनटू सीव ट्यूब एंड देन थ्रू सीव ट्यूब अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द प्लांट इट कैन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन और इट कैन बी मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब जब क्रोज यहाँ पे एंटर होगा तो क्या चेंजेस होंगे वो हम सेपरेटली पढ़ते हैं, बट वाटर के साथ ही ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, तो लोडिंग एंड अनलोडिंग का पार्ट यहाँ नोट करेंगे एंड देन आफ्टर वी कम टुवर्ड्स द मास फ्लो हाइपोथेसिस। यहाँ पे देखें, एट द साइट ऑफ सोर्स लोडिंग इज टेक प्लेस, that is from मीजोफिल, नॉर्मली लीफ को ही हम सोर्स के फॉर्म में लेते हैं क्योंकि मेजर सीजन में लीफ सोर्स का फंक्शन करता है, फ्रॉम मीजोफिल ऑफ लीफ सुक्रोज is transported in, किसमें ट्रांसपोर्ट होगा, सुक्रोज, so sucrose is transported in companion cell of phloem, then through plasmodesmata this food is loaded or transported
इन सीव ट्यूब। ठीक है, और सिंक पे ऑपोजिट प्रोसेस होगा। सीव ट्यूब से फूड कंपेनियन सेल में आएगा, कंपेनियन सेल से फूड अगर रूट के सेल से तो रूट सेल में आएगा। इनसाइड द रूट सेल दैट सुक्रोज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, फिर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ग्लाइकोलिसिस में सेलुलर रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो ये आप पार्ट याद रखेंगे कि व्हाट चेंजेस आर टेक प्लेस एट द साइट ऑफ सोर्स। सो दिस पैराग्राफ यू रिमेंबर, at sink unloading will result in removal of sucrose from sieve tube. It enter in cortex cells of root convert into glucose and fructose for further cellular metabolism. Okay, so for further metabolism आप याद रखेंगे, for the further metabolism at sink हम किसको अपीयर करते हैं, प्रोसेस ऑफ अनलोडिंग को अपीयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मास फ्लो हाइपोथेसिस हम यूज करते हैं बिकॉज वन बाय molecule solute is not transported. Solute whenever transport in phloem it transported as a bulk flow or mass flow, and that mass flow is generated by द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ जैसे ही सुक्रोज एंटर होता है सीव ट्यूब में, वाटर मॉलिक्यूल आर ऑल्सो स्टार्ट टू एंटर। अब मास फ्लो हाइपोथेसिस आप स्टडी करते हैं। It is proposed by Munch mass flow or bulk flow of sucrose is maintained by endosmosis at source due to which sucrose transported from source to sink and resulted in exosmosis at sink। ठीक है, इसको कहते हैं मास फ्लो। डिफिकल्ट है थोड़ा। एंडोस्मोसिस मींस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, एक्सोस्मोसिस का मीनिंग भी क्लियर है, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। सीव ट्यूब में होगा एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। सपोज ये आप शो कर रहे हैं, ये सिंपलेस्ट डायग्राम उन्होंने प्रपोज किया था मास फ्लो के लिए।
बुक में नहीं है, बुक में इसको लीफ एंड रूट के फॉर्म में ही शो किया है. दैट डायग्राम ऑल्सो वी ड्रॉ लेटर. एंड दिस इज द सिंक. दीज टू बॉक्सेस फ्लास्क के फॉर्म में शो किया था उन्होंने एक्चुअली ये डायग्राम. टू फ्लास्क he use flask A and flask B. In one flask he use a hypertonic concentration of sucrose and another flask he use a only pure water. And then after he indicate ki what is the direction of movement of sucrose. जिस फ्लास्क में हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन यूज किया था उनको उन्होंने सोर्स कहा था. एंड द फ्लास्क इन विच ओनली प्योर वाटर इज प्रेजेंट, फॉर दैट ही यूज द वर्ड सिंक. ठीक है, लेटर बॉक्सेस के फॉर्म में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट आर द वेरियस. एक मिनट, वन समवन आस्क्ड क्वेश्चन. फ्लोरल बर्ड नहीं दिख रहा था. ओके अनुष्का. तो मैं एवरी टाइम आई एम कमिंग गिविंग लेट रिस्पॉन्स है ना, बाद में ध्यान जाता है मेरा. तो समझ में तो आ गया था कि फ्लोरल बर्ड में क्या कंडीशन होंगी. ठीक है ना, फ्लोरल बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, अपवर्डली फ्लोरल बर्ड फॉर्म हो रहे हैं. तो उस कंडीशन में फूड कहाँ रिक्वायर्ड होगा, अपवर्ड कंडीशन. तो प्लांट को फूड की नीड किस डायरेक्शन में हो गई, अपवर्ड, लीफ के अपवर्ड डायरेक्शन में. सो फूड इन दैट केस स्टार्ट टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो ऐसा नहीं है जो 10th तक आप पढ़ते थे कि सभी स्टूडेंट 10th तक यही पढ़ते हैं कि फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन है एंड जाइलम इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड. तो जाइलम तो अपवर्ड ही है, बट फ्लोएम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा. फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट. ठीक है. और जब आप इस पैराग्राफ में लास्ट, फिर कंफ्यूजन होगा, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, एंटायर डायग्रामेटिकली स्टडी कर रहे हैं. आफ्टर दैट लास्ट पैराग्राफ, बुक अगर होगी तो आप इमीडिएट ओपन करेंगे. लास्ट पैराग्राफ में आप आइए, पेज का जो लास्ट पैराग्राफ है वहां पे चैप्टर का ही है, पूरे के पूरे चैप्टर का. ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि हर्टिक, हर्टिक वॉज द साइंटिस्ट, है ना. हर्टिक परफॉर्म वन गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द पाथ फॉर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट. एंड बाय दैट एक्सपेरिमेंट ही प्रूव्ड कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम के थ्रू जो फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट टेक प्लेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सेप फॉर्म होता है, बिकॉज ऑफ दैट वहां लिखा है कि एक स्वोलन रिंग इज फॉर्म एट द बेस ऑफ द, एट अबव द सरफेस ऑफ द रिंग. वो हम सब पढ़ेंगे. बट उस पैराग्राफ में अगेन इन दैट पैराग्राफ इट इज मेंशन कि फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. और फिर कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स को कि कहीं एनसीईआरटी में लिखा है बाई डायरेक्शनल, एट वन साइड इट इज मेंशन यूनी डायरेक्शनल. So it is better you directly come towards the summary. Summary का जो last paragraph है, in the last paragraph of summary, second और third last line होगा. So in that last third or fourth line of the summary, last paragraph है summary का, it is clearly mentioned कि bidirectional transport is take place in phloem, and that part only you remember. Summary बिल्कुल याद से पढ़ेंगे. Biology में summary also important because in every chapter some of the new things, one statement is provided new which is not throughout the chapter. तो बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट के लिए फाइनल स्टेटमेंट आपका समरी में प्रोवाइड है, तो समरी को बेस मान के चलेंगे आप वहां पे. ठीक है. और इंट्रोडक्टरी फॉर्म में भी बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट मेंशन किया है. यहाँ पे देखिए इसको हम क्या शो कर रहे हैं, दिस इज द सोर्स. ठीक है, ये फ्लोएम के ट्यूब्स आप शो कर रहे हैं. एंड हियर वी शो सिंक. सोर्स में दिखेगा हमेशा क्या होगा, सोर्स शो द लोडिंग. ठीक है, बिकॉज फूड के यहाँ पे क्या हो रही है, सिंथेसिस होती है. तो सॉल्यूट पोटेंशियल यहाँ हमेशा कैसे होगा, हाई. सॉल्यूट पोटेंशियल हाई. ओके. व्हेन वी कम टुवर्ड्स सिंक, sink show the unloading. Now it is clear to all what is source and sink, so no need to mention here. And that sink, you remember, it always show the low solute potential because it always responsive required the food. So solute potential value कैसे होगा, low solute potential is present here. Okay, so this part you remember. Now at the source food synthesize हुआ and then this food is enter in sieve tube. ठीक है. when food is enter in sieve tube, sucrose, food means क्या है यहाँ पे, सुक्रोज है.
So when this sucrose is enter in sieve tube, so suddenly in sieve tube hypertonic concentration is developed. फूड का कंसेंट्रेशन और सॉल्यूट कंसेंट्रेशन सीव ट्यूब में क्या हो गया, सडनली इंक्रीज हुआ. अराउंड द फ्लोएम क्या प्रेजेंट होते हैं, टुवर्ड्स द फ्लोएम जाइलम वेसल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, या जाइलम पेरेन्काइमा, आप याद रखिए बुक में जाइलम पेरेन्काइमा ही दिया है. तो जाइलम पेरेन्काइमा एक्चुअली प्लांट में क्या होगा, प्लांट में स्टेम में ये प्रेजेंट होता है फ्लोएम, एंड बिसाइड्स फ्लोएम टुवर्ड्स बोथ साइड जाइलम स्ट्रैंड्स आर प्रेजेंट. ठीक है, तो जाइलम से वाटर मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड फ्लोएम में फूड मूव कर रहा है, अब मान लीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में. एक सिंपल टर्म्स में हम पढ़ते हैं. So as the food or sucrose enter in sieve tube, so the water from xylem parenchyma start to move inside the sieve tube. Horizontal transport होने लगेगा water का. ठीक है, so side by side from xylem parenchyma water enter inside the sieve tube, and that's why we mention here कि end osmosis is take place at the site of the source. That means the sieve tube which are connected with source, in those sieve tube end osmosis take place. Because of end osmosis water level यहाँ पे increase हुआ, and mass flow water start to move towards downward direction because food require का movement है. तो यहाँ पे along with water this sucrose molecules show the mass flow or bulk flow. So bulk amount of sucrose is reaches towards the sink. Water भी available है यहाँ पे. ठीक है, and now from the sieve tube sucrose is enter in sink. इनसाइड सिंक सुक्रोज किस में कन्वर्ट होगा, सुक्रोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एंड दिस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन और इट इज यूज्ड इन इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है, 432 हो गया है, यहाँ पे मैं सम अप करूंगी. तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज यूज्ड इन सुक्रोज गेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इट इज यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन. अब स्लोली सुक्रोज का कंसेंट्रेशन, सुक्रोज से यहाँ पास होते जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सुक्रोज का कंसेंट्रेशन सीव ट्यूब में एट द लेवल ऑफ सिंक सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हुआ लेवल ऑफ सॉल्यूट. So whatever amount of water from xylem parenchyma enter inside the sieve tube, it again that water amount, same water amount is returned back into the xylem parenchyma. So at the site of sink हम लिखते हैं कि phenomena क्या होगा, exosmosis is take place at the sink. Water via xylem enter हुआ था, again that water move और exosmosis के through return back into the xylem parenchyma. Sucrose in cells of the sink broken down into किसमें ब्रेक होगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज और सेलुलर रेस्पिरेशन में. दिस इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मास फ्लो हाइपोथेसिस. सो फूड आप यहाँ पे शो कर रहे हैं सोर्स से सिंक की तरफ. मान लीजिए नेक्स्ट सीजन में ये कंडीशन क्या हो गई, दिस पार्ट बिकम अ सोर्स एंड हियर इट बिकम अ सिंक. सेम फिनोमिना आर टेक प्लेस, ओनली द पाथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ फूड में बी चेंज, रिवर्स्ड हो जाएगा, फूड स्टार्ट टू ट्रांसपोर्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन. Is it clear? So this much part you remember for the mass flow hypothesis. In next class one diagram is only remaining. जो plant का diagram है उसको explain कर दूंगी 10 minutes में, and वो आपका last एक paragraph है experiment with Hertig का experiment. So total for both the diagram and that experiment only 10 minutes required, and after that the chapter of mineral nutrition we begins. But first in mineral nutrition I will begins with the nitrogen metabolism. So nitrogen metabolism को next class में हम complete करेंगे and try to complete that entire topic of the nitrogen metabolism, क्योंकि वही part है आपका mineral nutrition में important. rest of part जो है वो reading का part है और थ्योरेटिकल पार्ट है, मींस कि किस पार्ट में आपके सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे, किस फॉर्म में आयंस एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो वो चार्ट के फॉर्म में हम लोग एक क्लास में नोट कर लेंगे. बट फर्स्ट वी कंटिन्यू विद द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. ये पार्ट कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट हो जाता है तो मुझे 1 और 2 स्टूडेंट्स बता दीजिएगा कि कंप्लीट हो गए. कितने बच्चे प्रेजेंट है, अदिति, अनुष्का, अनुश्री, शिन्या, वैशाली, मान्या, प्रगति, प्रियांशु, सोनू. ओके,
कुछ बच्चे हैं नहीं, ठंडी लग रही है उन बच्चों को, कोल्ड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैप कहाँ चला गया है पेन का? हो गया? एनी वन और टू स्टूडेंट्स मुझे बता देंगे, इज इट कंप्लीटेड? सो आई सम अप द क्लास। ओके अदिति, आई विल टॉक, ठीक है? वन और टू चैप्टर ओनली आई प्रोवाइड, रेस्ट ऑफ प्रोवाइड हो जाएंगे। इस प्लांट फिजियोलॉजी का तो पूरा पैकेज ही मिल जाएगा, ठीक है? ओके बेटा अनुष्का, कंप्लीट हो गया है सभी का, ठीक है? तो अब मैं ओवर करती हूँ क्लास, एंड स्पेसिफिकली फूड ट्रांसलोकेशन गो थ्रू द एनसीईआरटी वन टाइम, सो इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी और डाउट immediately solve in next class. Next class I will try to bring my book, so through book also one time we go through the book also, ठीक है? Okay, so bye to all, and now I end the class. Okay.